Okay, so last time we solved this problem with a different method, and today we are going to solve it by virtual work method. Now, if you remember, we had discussed that there will be two locations at which plastic hinges will form. First plastic hinge will form at A. This was deduced based on the shape of the bending moment diagram. The bending moment diagram, the elastic bending moment diagram, has the highest ordinate at A. So we came to know that the first plastic hinge would be formed at A, and then the second plastic hinge would be formed at B. Again, this was based on the bending moment diagram shape. So once you know the locations of the plastic hinges A and B, even if you don't know the sequence of formation, like which one will be formed first, if you know only about where the plastic hinges are going to be formed, which is easy to do in case of concentrated loads only. So if A and B are known to be the locations where plastic hinges would be formed, then just consider the deflected shape of the beam when those plastic hinges would be formed. All of the plastic hinges required to form mechanism are formed. So if you see, this would be the deflected shape. Agree? So the virtual work method says that the work done by the external forces would be equal to the work done by the internal forces. Okay, so can you identify the external forces in this beam? WU, anything else? External forces on the beam. How about the reaction forces? Are those the external forces or internal forces? Reactions are the internal forces? Reactions are also the external forces. The only difference between the applied load and the external and the reaction forces is that the applied load is what causes those reaction forces to develop. So we have external force, vertical external force at A and moment reaction at A. And similarly, we have a vertical force, vertical reaction at C, and we have an applied external force WU at B. So the work of the external forces is equal to the work of the internal forces. This is a principle. Now how do you calculate work? Force multiplied by the distance driven by the force. Now since A and C are undisplaced, agree? So there are no displacements being produced at A and C. It means at these locations the work done is zero. The forces do exist at A and C, external forces, but since they are undisplaced, the product of force multiplied by the distance driven is zero. So you see that there is no work done at A, there is no work done at C, external work done, and at B we have a force, and we can see it has been driven some distance. It is displaced some distance. So this is the displacement. So the external force would be WU times the displacement. Now what about this displacement? If this angle is, let's say, theta, we've just introduced a parameter to define this angle, and we just named it to be theta. So if this angle is theta, then due to symmetry, this angle must also be theta. If one of them is called theta, the other must also be the same angle, theta, because of the symmetry. We have equal spans on both sides. Half. All right, so if this angle is theta, then what do you think about this dimension? Vertical dimension, this dimension. If this is L by 2. For small angles, the tan and
tan of the angle, the theta and the tan of the angles are equal. So you can say these are approximately equal, and then you can say theta. Okay, so this would be calculated as, if you name this distance as, let's say, whatever you like, maybe delta, whatever you like, over L by 2. And then from here you can see that this delta would be equal to theta L by 2. Agree? So if theta is equal to delta divided by L by 2, you can write this down as delta equal to theta L times L by 2. Theta times L by 2. So W multiplied by theta L by 2. This is the work done by the external forces. Now work done of the internal forces. What do you think? What internal forces mean over here? Yes, shear force is an internal force. What else? Multiplied by, and sorry, bending moment. Yes, bending moment. Yes, bending moment is also an internal force. Now the shear deformations are negligible compared to the bending deformations, which are basically the rotations. So we will neglect the work done by the shear forces and just consider the work done by the bending moments. So considering that, we have, you know, there is a bending moment of MP developed over here. Do you remember? When plastic hinge is formed at a point, the bending moment at that location is exactly equal to MP, the plastic moment capacity of the section. So we have a bending moment of MP at A, we have a bending moment of MP at B as well, because we have another plastic hinge at B. So now if you see, the internal work is also force times the displacement. In this case, the force is a moment and the displacement is a rotational displacement. So the moment at A is MP times the rotation at A is theta A. Agree? And what about this case? We have a bending moment of MP over here again at B point, at this point B. We have a bending moment of MP, but what about the rotation? Well, what do you mean by slope or theta? If the reference is always the undeformed shape of the beam, which is this horizontal line. So in this case, this was theta because this was the angle of the horizontal with the deformed shape. And what about this point? This is the line going on at B. And if you would like to draw this is theta. Now, since what we see over here is that the change in angle is 2 theta, because if you see, if this angle is theta, this must also be theta. So the total rotation change, the total rotation between the two segments, the two adjacent segments connecting at B is 2 times theta. Theta is the angle, what the angle between horizontal and this line. At this point, what you see is this is the discontinuous end, and this is the only way you can define the rotation. At this point, we have a line going like this, and then it changes its shape this way. So this is what the total change in rotation would be, 2 theta. Now, what you can do is, if you just want to, clarify, just to help you know how we calculate these things, where do they come from? This is what we have at point A. I've just called it theta A, but this is also theta. We've just defined it theta. And this is at A, and this is at B.
So if you look at this, the equation you have just formed, can you eliminate theta? Yes, sir. Yes, sir. Can it be cancelled out? Yes. So write down the equation without theta, I mean eliminating it, taking it as a common and then cancelling it from both sides. Now, can you simplify your equation for for WU, sorry? Because the ultimate goal is to find the collapse load, WU, in terms of the rest of the parameters, MP and L. So please write down the equation for WU. So you get 6 MP over L. And this is the same answer as you got when you used the other method. So for this problem, if you need to identify which two plastic hinges are the one that would be actually formed. So as far as possibilities are concerned, first possibility is you have a plastic hinge at A and a plastic hinge at B. And this is how the collapse is formed. And the second possibility is you have a plastic hinge at A and another at C. And the third possibility would be that you have plastic hinges at B and C. So for all possible collapse mechanism, these are the three possible collapse mechanisms. You will, for all of them, each one of them, you will calculate the collapse load, and the one which gives the lowest collapse load will be the one which will be actually formed. In तीनों का आपने collapse load निकाल देना है, considering all the three mechanisms, and then you will calculate, and then the lowest of them will govern. If there are three possible ways that a beam can fail in, and each one of them have certain loads at which those failures would take place, then the beam would actually fail in that way which gives the lowest capacity. I mean, if you just consider, I mean, this is a different case. If I tell you that a beam can fail in shear at 10 kip, and the same beam would fail in bending moment at 12 kip, it means the beam would actually fail in shear at 10 kip load. So whenever there are possible ways in which beams can fail or any structure can fail, the way in which it would have the lowest capacity will be the one that actually happens. All right. So for example, if I can just give you a few numbers over here, just throwing those numbers, now another point that you need to keep in mind that in this case we are saying W1 and W2. We are not giving any values for them, and this is how plastic analysis becomes complicated. In elastic analysis, the final values of these loads is the one that is what that actually matters. यानी इनकी जो final values है ना वो matter करेंगे. मैं आपको मिसाल देता हूँ. एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इस टाइम है ये मेरा टाइम और ये W1 है और ये W2. मैं बीम को लोड करना शुरू करता हूँ. 0 टाइम के ऊपर, 0 सेकंड के ऊपर मैंने दोनों को 0 रखा हुआ है. 1 सेकंड बाद मैंने W1 को रखा कर दिया 2 और इसको कर दिया 4. फिर सेकंड में मैंने इसको कर दिया 4, इसको कर दिया 6. ये एक पॉसिबिलिटी. ऐसा अब अल्टीमेटली वैल्यूज मसलन ऐसे थर्ड सेकंड में मैंने कर दिया इसको कर दिया 6
और इसको कर दिया 8। जिस वे में मैं, अच्छा मुझे बताएं, अगर W1 की वैल्यू ज्यादा हो कंपेयर टू W2 तो ज्यादा चांस यही है ना कि B पे प्लास्टिक हिंज बन जाए, और अगर W2 की ज्यादा हो तो फिर ज्यादा चांस यही है कि W2 पे बन जाए हिंज। इसका मतलब ये कि जब दोनों लोड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो जो लोड ज्यादा बढ़ेगा वहां पे ज्यादा चांस है कि वहां हिंज बन जाएगा। इस वजह से प्लास्टिक एनालिसिस में जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें कोई ना कोई उन दो लोड्स के बीच में एक रेशियो एज्यूम करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि W1 को हम कह देते हैं कि लेट्स से इसका नाम है W, और W2 को हम कह देते हैं कि ये होगा 5 टाइम्स W, मिसाल के तौर पे। यानी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जितनी वैल्यू यहाँ पे लोड की होगी उसके 5 टाइम्स यहाँ पे होगी। उस केस में मसलन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लोड कर देता हूँ 5, तो इधर करूँगा 25। अगर मैं इधर 10 कर देता हूँ तो इधर 50। यानी मुझे जो इनके बीच में रेशो है वो एक कांस्टेंट रेशो एज्यूम करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रीच द फाइनल, तब जाके मैं एनालिसिस कर सकता। अगर ये डिफाइंड ना हो तो मैं एटलीस्ट इस वक्त एनालिसिस इस मेथड के थ्रू एटलीस्ट नहीं कर सकता। जो मेथड आपने पढ़ लिया, पहला वाला मेथड या ये वाला मेथड, इसके अंदर आप एक और मेथड होता है उसको इंक्रीमेंटल मेथड बोलते हैं, कि जिसके बाद जिसमें ये होता है कि आप मतलब 0 सेकंड पे जितने लोड्स हैं वो लोड आप एक्चुअली लगा दें और बेंडिंग मोमेंट्स कैलकुलेट कर दें। फिर 1 सेकंड के ऊपर जितने भी W1 और W2 की जो वैल्यू है वो आप एक्चुअली लगा दें और आप दोनों पूरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट कर दें। फिर हर सेकंड बाद हर सेकंड या कह लें हर टाइम इंटरवल के ऊपर जैसे जैसे लोड्स बढ़ रहे हैं हर इंक्रीमेंट के ऊपर आप पूरी पूरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते जाएं। जिस स्टेज जब आप वो स्टेज लोड बढ़ता जा रहा है, ठीक, दोनों सब लोड W1 भी बढ़ रहा है W2 भी बढ़ रहा है, हर दफा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं आप हर इंक्रीमेंट के ऊपर। जिस वक्त आपका मोमेंट MP पे जहां भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पहुंच जाए वहां पे प्लास्टिक हिंज बन जाएगी। फिर उसके बाद से आप नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि फिर आप जैसे आपने इंटरनल हिंजेस पड़ी हुई ना, तो वो आप प्लास्टिक हिंज को ऐसे समझ लेते हैं कि अब मजीद लोड लगेगा, अब वहाँ पे हिंज होगी, अब उसको हिंज कंसिडर करते हुए एनालिसिस करते जाएंगे, यानी उसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 1 से रिड्यूस हो जाएगी जब आपका पहला प्लास्टिक हिंज बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप एनालिसिस कर रहे थे और किसी स्टेज आपको पता चल गया कि ये वहाँ पे प्लास्टिक हिंज बन जाएगा, जितने भी लोड्स लगे थे, मसलन यहाँ पे लोड था 10 किप और यहाँ था 50 किप, इसके ऊपर जाके आपको पहला प्लास्टिक हिंज यहाँ पे मिल गया। आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कह रही है कि यहाँ का जो मोमेंट है बेंडिंग मोमेंट ये MP पे पहुँच गया, तो लिहाजा यहाँ प्लास्टिक हिंज बन गई। अब ये लोड इस वक्त कितना है, लेट्स से 10 किप है और ये लोड 50 है। अब जब मजीद आप लोड बढ़ाएंगे बढ़ेगा, मसलन जब ये जाएगा 11 पे और ये जाएगा 55 पे, मिसाल के तौर पर अगर हम इसी तरह के इंक्रीमेंट से चढ़ें, तो उसके बाद जो आप एडिशनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स आएंगी वो इस तरह से आएंगी, इस बीम को यूं कंसिडर करते हुए। यानी एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो आ चुकी है ना, जब ये 10 पे पहुंचे 55 पे पहुंचे एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गई। अब जब आप एडिशनल लोड लगाएंगे, यहाँ पे 1 किप एडिशनल लगाया, 1 किलोमीटर ने जो भी किप है या किलोमीटर ने जितना भी है, और यहाँ मैंने एडिशनल 5 लगाया, लेकिन वो जो 5 लग रहा है वो इस तरह की बीम पे लग रहा है जहां यहाँ पे एक प्लास्टिक हिंज बन चुकी है। तो अब यहाँ वाली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी बनती है, ये वाली बेंडिंग डायग्राम सुपर इम्पोज होगी उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साथ जो आपने बनाई थी जब यहाँ पे फर्स्ट प्लास्टिक हिंज बन गया था। यानी हर ऑर्डिनेट इधर का, इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का इधर वाला ऑर्डिनेट और करस्पॉन्डिंग इस लोकेशन पे इधर वाला ऑर्डिनेट एडअप होते जाएंगे। मैं आपको सिर्फ आइडिया देना चाह रहा हूँ कि इंक्रीमेंटल मेथड वर्क कैसे करते हैं। आप एक्चुअल एनालिसिस कर लेते हैं फॉर ईच इंक्रीमेंट, और पिछले के साथ आप सुपर शुरू में, चूंकि इलास्टिक के केस में प्रीवियस के साथ एडअप करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होता है, आप उसमें ये मैटर नहीं करता कि कौन सा लोड क्या पहले लगा हुआ है या ये बाद में लगा है। यानी जब आप इलास्टिक एनालिसिस कर रहे हो, तो अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि इलास्टिक एनालिसिस
इसका आपको जैसे आप शुरू में जब अब अभी तक जितना पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपको ये बीम दे दूं, मैं कहूँ यहाँ पे 5 किप लोड है या लेट्स से 10 किप लोड है और यहाँ पे 50 किप लोड है, तो इसका एक ही आंसर बनेगा, इसकी बेंडिंग डायग्राम का एक यूनिक आंसर बनेगा। लेकिन प्लास्टिक एनालिसिस में हम ये कहते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लोड पहले ये लगाऊं, दूसरा अभी तक सिर्फ 10 किप ही लगाता जाऊं, दूसरा भी लगाऊं ही ना, और दूसरे केस, और जब ये 10 किप पूरा हो जाए फिर मैं 50 किप अप्लाई करूं, दोनों में हो सकता है कि डिफरेंट रिजल्ट आ जाए। अगर वो 10 किप वाले ने पहले ही यहाँ पे अब 10 किप जो बीम ऐसी है कि वो 10 किप वाले ने यहाँ पे प्लास्टिक हिंज लेट से बना दी, मिसाल के, यहाँ पे बनेगी नहीं, वैसे मिसाल दे रहा हूं, और उसके बाद आप 50 किप वाले को ले आएंगे तो प्लास्टिक हिंज तो पहले 10 किप वाले ने बना दी है ना, अब आप 50 किप वाले को लेके आ रहे हैं। यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के जिसमें आप डिफरेंट लोड्स को, यानी अगर ये इलास्टिक होता तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई मसला नहीं था। प्लास्टिक अगर ये इलास्टिक, अगर ये जो 10 किप का लोड लग रहा है, अगर ये इस बीम को इलास्टिक रेंज तक ही लोड करता है तो फिर तो आप अलग से 50 किप डाल दें, फिर ठीक है एनालिसिस। लेकिन अगर ये उसको इतना लोड कर देता है कि किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट MP पे पहुंच जाता है, तो अब आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक एनालिसिस में कहां पे प्लास्टिक हिंज बनेगी ये मैटर करता है आपके एक्चुअल रिजल्ट को, और प्लास्टिक हिंज कहां पे बनेगी ये डिपेंड करता है कि कहां पे कितना लोड लग रहा है, लोकेशन क्या है उसकी। सो फिर चली गई लाइट, टाइम भी वैसे ओवर हो गया, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दूं। अगर हिंज यहाँ पे बने और यहाँ पे बने तो शेप इस तरह की बनेगी, और अगर दूसरी तरह बने, अगर इस तरह सेकंड नोड के नीचे बने तो इस तरह बनेगी, और अगर एक यहाँ पे बने और एक यहाँ पे बने कुछ इस तरह की शेप बनेगी, ठीक है। बल्कि इसको फिर आप यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला है तो आप ये वाला तो फिक्स ही रहेगा ना, फिर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या इस तरह ड्रॉ कर देंगे। अगर यहाँ प्लास्टिक नहीं बने, सॉरी, एक यहाँ पे प्लास्टिक की बनी, एक यहाँ इस केस में यहाँ बनी, एक यहाँ बनी। जहाँ प्लास्टिक की बनेगी तो फिर वो इसको रोटेट होने देगा। इस केस में यहाँ प्लास्टिक की नहीं बनी तो इसका मतलब यहाँ से कोई रोटेशन अलाउड नहीं है, तो ये स्ट्रेट रहेगा। असल में स्ट्रेट नहीं रहता, लेकिन इनके मुकाबले में स्ट्रेट रहता है। असल में थोड़ी सी कर्वेचर इसके अंदर होगी, लेकिन आप कहेंगे ना कि ये आप जब शुरू में आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये लाइंस आप स्ट्रेट क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। मैं स्ट्रेट इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये जो डिफ्लेक्शन है जहाँ पे प्लास्टिक हिंज बनी है वो मच लार्जर होगी कंपेयर टू डिफ्लेक्शंस एल्सवेयर। जो कर्वेचर है ना, यहाँ पे सारे कर्वेचर यानी वो ऐसे, जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, अगर यहाँ पे मैं हिंज दे दूँ इसको, तो जब आप लोड लगाएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ लगा दो लोड, तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा स्ट्रेट। आप कहेंगे यहाँ क्यों नहीं रोटेशन आएगी, यहाँ कर्वेचर क्यों नहीं प्रोड्यूस होगा, इसलिए कि आपका यहाँ पे रोटेशन अलाउड है। तो जब आप इसको लोड लगा लेते हैं तो ये दोनों सेगमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एज अ होल रोटेट कर जाते हैं। इन सब के अंदर भी यही मैकेनिज्म हुआ है, लेकिन ये इनिशियली ऐसे नहीं थे, इनिशियली ये इस तरह थे, और एक यहाँ मिसाल के तौर पे फिर एक और हिंज यहाँ बन गई, तो उन जगहों पे
आपकी रोटेशंस हो रही है मच लार्जर देन दी अदर रोटेशंस। एनीवेज इन तीनों के करस्पॉन्डिंग आप कोलैप्स लोड कैलकुलेट करेंगे और जो लोवेस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी योर एक्चुअल कोलैप्स लोड। अब आप ये पूछ सकते हैं मसलन इसका कोलैप्स लोड आप कैसे निकालेंगे, वही प्रोसीजर मैंने आपको अभी बता दिया। अगर इनके ये डिस्टेंसेस तो आपको पता होंगे, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये L/3 है और ये L/2 L/3 है, तो फिर भी आप इसको कर सकते हैं। मसलन ये L/3 डिस्टेंस है, लेट्स गिव अ नेम टू दिस एज थीटा। तो ये जो डायमेंशन है ये डिफाइन हो जाएगी ना जी सर। ये डायमेंशन क्या हो जाएगी अब थीटा L/3 स्लोप इनटू डिस्टेंस। ये एंगल अब हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज 2L/3 2L/3 है ये। अगर ये 2L/3 है और ये थीटा L/3 है तो ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट हो सकता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, थीटा L/3 divided by 2L/3, you will get your answer in terms of theta। यानी कि अगर इसको आप एक एंगल डिफाइन करते हैं दूसरा एंगल भी उसी के फॉर्म में डिफाइन हो जाएगा। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा/3 थीटा/2 हो जाएगा, जो भी आंसर बनता है। तो अब आपको यहाँ वाले रोटेशन पता है थीटा/2, यहाँ वाले भी पता है, और अगर आपको एक्सटर्नल वर्क भी नहीं होगा ना W into थीटा L/3, इंटरनल वर्क आपने प्लास्टिक हिंज जिसको देखते हैं कहाँ बन रही है, एक हिंज यहाँ पर है और एक हिंज यहाँ पर है, तो MP into थीटा प्लस ये रोटेशन अब कितनी हो जाएगी, अगर आप देखें तो ये एंगल थीटा है, ठीक है जी सर, और ये एंगल कितना है जितना ये एंगल है थीटा/2, तो ये सम कितना हो जाएगा 1.5 थीटा जी सर। नेक्स्ट MP into 1.5 थीटा, इस तरह आप लिख सकते हैं। यहाँ से अगेन आप थीटा एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू कैन कैलकुलेट W। इसी तरह का प्रोसीजर व्हेन यू आर डूइंग दिस वे, इसी तरह का प्रोसीजर। अच्छा इसमें एक और चीज होगी, अगर ये दोनों ही W मसलन में या तो मैं W मैं इनके बीच में कोई ना कोई आपको फ्रैक्शन कोई रेशो बताऊंगा, हो सकता है दोनों को मैं W कह दूं 1:1 रेशो, हो सकता है मैं इसको W इसको 2W कह दूं, तो वो मैं आपको जो वैल्यू दे दूं फिर आप इसको यूज करना है। अच्छा इसमें सर एक और चीज भी होगी, दो लोड्स है ना, एक्सटर्नल लोड और सिर्फ एक W नहीं है, आपने भी नहीं पूछा। मसलन मैं इसको W कहता हूँ, इसको 2W कहता हूँ, जो भी वैल्यू होगी वो मैं आपको दूंगा। इस W के नीचे कितना और ये डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको भी W चलो साथ सिंपली W कह देता हूँ, W into थीटा L/3, ये तो ये भी हो गया, लेकिन इसके अलावा ये भी तो है यहाँ पे, इसके नीचे भी तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब ये डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम, लुक एट दिस, अगर ये एंगल थीटा/2 है तो इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेना, ये जितना भी डिस्टेंस है, ठीक है। लेट्स से ये L/3 है तो आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वो 2W है तो आप 2W multiplied by this distance. This distance is how much? Theta/2 times ये L/3। यहाँ लोड की तरफ से एक ही वेरिएबल है W, क्योंकि एक लोड को नाम दे दिए, दूसरे लोड को उसी के प्रोपोर्शन से डिफाइन किया। दिस इज W, इसको 2W कहा होगा। अगर मिसाल के तौर पे अगर ऐसा ना हो, इसको भी W1 कहूं, इसको W1 कहूं, इसको W2 कहूं, तो फिर तो सॉल्यूशन नहीं निकल सकता ना, अनटिल कि मुझे इनके बीच में रेशियो पता हो। क्लियर है ये? इसी तरह बाकी केसेस में भी, थर्ड केस में भी आप इसी तरह कर लेंगे। यहाँ पर अब हिंज बन ही नहीं रहा, यहाँ पे ना कोई रोटेशन है ना कोई हिंज बन रही है। अब इस केस में यू विल ओनली हैव, यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो डिस्प्लेस हो रहा है, ये वाला लोड भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो एक्सटर्नल में सिर्फ ये लोड मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपने देखा कि थीटा बीच में से एलिमिनेट हो जाता है, तो आपने थीटा से परेशान नहीं होना कि मैं थीटा किसको कहूँ, आप जिसको भी थीटा कहना चाहे, इसको भी थीटा, इसको थीटा कहते हैं, इसको कहना है, इसको कहते हैं, ठीक है, इसको थीटा कहना चाहे, इसको थीटा कहते हैं।
जो भी आप कोई एक पैरामीटर डिफाइन कर दें, बाकी उसी की फॉर्म में डिफाइन होते जाए। मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, इसी में वन नोट के ऊपर ले लेता हूँ फिर।